Okay friends, welcome back. Welcome to Saral Maths. Now we will start arithmetic progression in detail. What is arithmetic progression? Let us recall the definition. We know that any sequence is said to be in AP, that is arithmetic progression, if and only if difference between any two consecutive terms is always constant. It means what? A1, A2, A3, A4, dash dash An. This sequence is said to be in AP, arithmetic progression, if and only if A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 dash 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 is equal to what? An, that is nth term, minus its previous term, that is An minus 1, and this difference is always constant, and this constant is called common difference. इसको हम क्या बोलते हैं? This is called the common difference and is denoted by small d. Okay, now how to find nth term of AP? It is also called general term of AP. Suppose the standard form or general form of AP is first term is A, second term is A plus D, third term is A plus 3D, A plus 2D. First term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D. So we can observe the series, okay, and the term is A plus n minus 1 into D. So this is the nth term, okay, of AP. So the general formula of nth term Tn और an भी लिखते हैं इसे अपन. So Tn or An, that is nth term of AP, is written as A plus n minus 1 into D. Okay, this is the nth term of AP. Okay friends, where A is the first term, D is the common difference, n is the number of terms, okay, or An या Tn is the nth term. Now how to find the sum of first n terms? Means Sn is A plus D plus A plus 2D plus dash 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 A plus n minus 1 into D. We want to find sum of n term of AP और sum of first n term of AP. तो इसका फॉर्मूला होता है n by 2a plus n minus 1 into D. Okay friends, this is the, इसको हम क्या बोलते हैं? This is called the sum of first n terms of an AP. This is the formula for sum of first n term of an AP. Okay, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं. आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा. ओके, अब फ्रेंड्स अब हमें देखना है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म क्या होता है फ्रेंड? ओके, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP? लास्ट टर्म ऑफ एन AP. देखिए फ्रेंड्स, An is also called the general term. Okay, now लास्ट टर्म निकालना है आपको. If there are
m terms in the AP. If there are m terms in the AP, कितने टर्म है? अगर m टर्म्स है मीन्स हमें पता है, वी नो दैट हाउ मेनी टर्म्स इन द AP, then an represents the am. If there are m terms in the AP, then am represent the last term. Okay, last term, and is denoted by L. Okay friends, it means L is a plus n minus 1 into d. This is the formula for last term of an AP. If there is, we have where, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, where n is given. अगर आपको n गिवन है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ओके, तो आप इस टाइप से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, इफ देयर आर m terms in the AP, then am represent the last term and is denoted by, इस टाइप से आप इसके लिखेंगे, लास्ट टर्म इज a प्लस दिस इज m minus 1 into d, where m is given. Okay, so Sn is क्या हो जाएगा, देखिए n by 2a जो लिखा है उसको अपन a प्लस a लिख लेते हैं, जो ऊपर लिखा है अपने सम ऑफ n टर्म को अपन लास्ट टर्म के फॉर्म में लिखना है, प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म. ओके, इफ n इज गिवन और m इज गिवन, तो n by 2 a प्लस l. क्यों? सिंस l इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ऐसा क्यों होगा फ्रेंड? देखिए, क्योंकि l लास्ट टर्म को भी हम nth टर्म से डिनोट करते हैं जब n इज गिवन रहता है. तो दिस इज सम ऑफ n टर्म्स. ओके फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, मैं आपको यहाँ पर एक नोट लिखवाना चाहता हूँ. देखिए, लास्ट term L is also find out by using L is equal to L minus last term from end. Okay, so L is equal to L minus n minus 1 into d, last term from end. ओके फ्रेंड्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, और टर्म्स फ्रॉम लास्ट. सो nth term from last, this is called nth term from last or nth term from end or from last. Okay, that is term from last. तो इसको हम कैसे निकालते हैं, L is equal to L minus n minus 1 into d. ओके, वन मोर थिंग, एक चीज और ध्यान रखना, पीथ. देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पीथ टर्म फ्रॉम लास्ट is equal to n minus p plus 1th term from beginning. BEGINNING.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। pth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू n माइनस पी प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आपको बोला है 10th टर्म या 2nd टर्म या 8th टर्म 12th टर्म लास्ट से निकालिए, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालना है, n माइनस 12 करना है, प्लस 1 करना है और बिगनिंग से ये निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एपी। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ एपी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट द सिंपल क्वेश्चन। Let us start with a simple question and then we move towards some difficult and variety of questions. What is question number 1? Question 1 is find the 10th term. Find the 10th term of the AP। एपी क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दे रखा है हमें, 2, 7, 12 एंड डैश डैश। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है इस एरिथमेटिक सीरीज का या सीक्वेंस का। ओके, तो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए हियर फर्स्ट टर्म, ए से हम क्या डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म। तो हियर फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज ए इज 2। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। अब कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 12 माइनस 7 इज 5। ओके फ्रेंड्स, क्रॉस चेक कर लीजिए, 7 माइनस 2 इज ऑल्सो 5, तो आपके पास डी मिल गया। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, फाइंड द 10th टर्म। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 10 लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें 10th टर्म निकालना है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट nth term of an AP is given by, कैसे दी जाती है फ्रेंड्स, nth टर्म कैसे लिखते हैं अपन, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओके, देयरफॉर 10th टर्म दैट इज a 10। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करना है, 10, तो आपको 10th टर्म मिल जाएगी। ओके, n की वैल्यू अपने 10 पुट कर दी, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। यस, 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 5 है। ओके फ्रेंड्स, दिस इम्प्लाइज, तो आपको 10th टर्म क्या मिल जाएगा, 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5, 9 5 जब 45। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लस 2 कर दीजिए तो 47। ओके, तो आपका आंसर आ गया, 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 47। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस द 10th term of the given AP is 47. This is your answer. Okay. Now let us see next question. Okay friend, now let us see next question. Which term of AP 21, 18, 15 dash dash is minus 81? मीन्स आपको निकालना है यहाँ पर कि किस नंबर की टर्म माइनस 81 होगी। ओके, सो हियर ए इज 21, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 21 है। डी निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 21 माइनस 3, या 15 माइनस 18 कीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए तो माइनस 3 आएगा। यस, आपको निकालना है एन की किस वैल्यू के लिए
मीन्स किस नंबर की टर्म पर -81 आएगा। ओके, सो अपन क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन ए पी बी -81। ओके, दैट इज ए एन हमने -81 सपोज कर लिया। ओके, अब वी नो दैट, हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। देयर फोर अब ए एन अपन ने क्या सपोज किया है, -81, ए है हमारे पास 21, एन हमें निकालना है और डी है मेरे पास -3। ओके, देयर फोर -81, 21 इधर ले आइए LHS में, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस से, इधर बचेगा n-1 इंटू -3 ये बचेगा। ओके, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो मैं ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 8 और 2 0 10 सॉरी, तो ये हो गया -102। ओके, इधर क्या है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा यहाँ पर -3n और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। ओके, अब आप इस 3 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा ये -102 और -3 -105 हो जाएगा, इधर है -3n। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आएगा -105 अपॉन ये नीचे चला जाएगा -3। जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में रहती है तो वो नीचे, अब उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो अपॉन में जाती है। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 3 3 जा 9, कैरी आया 1। ओके, 1 बचा रिमेनिंग, तो 3 5 जा 15। सो आंसर इज 35। ओके, आपका आंसर आया है 35n की वैल्यू। ओके, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द 35th term of the given AP, okay, 35th term of the given AP is -81। so this is your answer। कौन सी टर्म होगी, 35th टर्म जो है वो -81 होगी। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है आपके लिए। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मेरा एम है यहाँ पर, एक टारगेट है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। In an AP, if Sn is 3n square plus 5n and pth term that is AP is 164, find the value of P। अगर आपके पास कोई AP है और उसका सम ऑफ n टर्म्स, Sn मीन्स क्या होता है फ्रेंड, Sn is denote the sum of n टर्म्स और फर्स्ट n टर्म्स, ये आपको दे रखा है और आपको pth टर्म दैट इज AP दे रखा है, तो आपको वैल्यू निकालना है P की। ओके, मीन्स किस नंबर पे ये टर्म आएगी, मीन्स कौन सी टर्म P की किस वैल्यू के लिए 164 आपको इस AP में मिलेगा। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले वी हैव गिवन, हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन Sn आपको दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आपको दे रखा है। तो ये सम ऑफ n टर्म्स है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। तो
S1 कितना मिल जाएगा, देखिए n की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 1 स्क्वायर इज 1 एंड n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 1, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो मुझे क्या मिलेगा 3 प्लस 5 8। तो ये क्या मिला मुझे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। ओके, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स एक ही टर्म, एक फर्स्ट वाली जो टर्म है उसी का सम मिला है। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सिंपली फर्स्ट टर्म, क्योंकि अगर ए की वैल्यू है तो उसका सम क्या होगा, वही होगा ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, A1, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 8। अब मुझे निकालना है S2। S2 मीन्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 12 प्लस 5 इंटू 2 10, तो 12 प्लस 10 इज 22। ओके फ्रेंड्स, 22 मिला आपको। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये है A1 प्लस A2 का सम है, क्योंकि सम ऑफ टू टर्म्स, तो A1 प्लस A2। तो मुझे अगर A2 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, S2 माइनस S1 कर दूंगा, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। तो S2 माइनस S1 क्या होगा मेरे पास, देखिए S2 क्या है 22 और S1 क्या है दैट इज 8, तो दिस माइनस दैट इज 14। ओके, 22 माइनस 8 कितना आएगा 14, तो ये मेरे पास आ गया A2, सेकेंड टर्म आ गई। ओके, तो इसी प्रकार से आप सारी टर्म निकाल सकते हैं। अब देखिए, सो द AP, तो हमारे पास AP क्या बनेगी, अब फर्स्ट टर्म A1, A1 क्या आया 8, सेकेंड टर्म A2, A2 क्या आया 14, सिमिलरली A3 क्या आएगा 20 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जब आप निकालेंगे टर्म्स तो आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, हियर A is 8, that is first term is 8, कॉमन डिफरेंस D 14 माइनस 8 कर लीजिए या 20 माइनस 14 कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा 6। ओके, अब कॉमन डिफरेंस आ गया है और फर्स्ट टर्म आ गई है, तो आपको निकालना है P की वो वैल्यू जिसके लिए आपको ये टर्म मिल जाए। ओके, सो वी नो दैट nth टर्म क्या होता है फ्रेंड, वी नो दैट nth टर्म इज गिवन बाय an is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, therefore pth टर्म क्या होगी a plus p minus 1 into d, और वो आपको 164 गिवन है, ये गिवन है। अब वैल्यू पुट कर दिए, a की वैल्यू कितनी है 8, p माइनस 1, d की वैल्यू 6 और यहाँ पर है 164। ओके, अब आपको क्या करना है, 8 को आपको इधर RHS में लेके जाना है, तो 164 माइनस 8 इज 156। ओके, इधर क्या बचेगा p माइनस 1 इंटू 6, तो ये 6 अपॉन में चला जाएगा तो बचेगा p माइनस 1, तो 156 अपॉन 6 दैट इज 26। ओके, सो p माइनस 1 इज 26, देयरफॉर सो p माइनस 1 कितना 26 है, 1 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो p 26 प्लस 1 दैट इज 27। ओके, हैंस द value of p is 27. This is your answer. Now let us see next question. Okay friend, now let us take one more question. Find the 20th term from the end of the AP 3 8 13 dash dash up to 253. So friends, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है फ्रॉम एंड और फ्रॉम लास्ट से। ओके, सो हियर a इज 3, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस D इज 5 है, निकाल लीजिए, 8 माइनस 3 13 माइनस 8 5 आएगा, और nth टर्म या लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसे हम 253 गिवन है। तो फ्रेंड एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, nth टर्म फ्रॉम लास्ट और nth टर्म फ्रॉम एंड। nth टर्म फ्रॉम लास्ट से आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है L माइनस दैट इज लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे अपन, लास्ट टर्म है 253 माइनस n की वैल्यू क्या है 20 है, क्योंकि 20th टर्म निकालना है, तो 20 माइनस 1
इंटू डी जो है मेरे पास कॉमन डिफरेंस इज 5। ओके, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 इंटू 5, दिस इम्प्लाइज 253 माइनस कितना हो जाएगा 95। ओके, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 253 माइनस 95 कितना हो जाएगा 158। ओके, सो दिस इज योर आंसर। सो द 20th term from the end of the AP 3 at 13 dash 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 253 is कितना आएगा फ्रेंड 158। दिस इज योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरीका हुआ, दिस इज फर्स्ट मेथड, इसको अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट मेथड। अब मैं इसको एक मेथड और बताता हूँ आपको इसके लिए सॉल्व करने के लिए। सेकेंड मेथड देखिए, pth term from the last is equal to n minus p plus 1th term from the first. Okay, pth term from the last or and is equal to n minus p plus 1th term from the first or beginning। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, n फाइंड आउट करना पड़ेगा, जबकि p हमारे पास 20 है, क्योंकि हमें pth टर्म निकालना है। ओके, फ्रॉम द लास्ट से, तो pth टर्म फ्रॉम लास्ट होता है n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग। सो देखिए वी हैव, हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयर फोर यहाँ पर मेरे पास nth टर्म क्या है 253 है। ओके, ए क्या है मेरे पास 3 है और n मुझे निकालना पड़ेगा, तभी मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर पाऊंगा। तो n वी हैव टू फाइंड एंड d इज 5। सो 253 ओके इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 5n माइनस 5। ओके, देयरफॉर यहाँ पर 5 माइनस में है 3 प्लस में है, तो 253 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास प्लस 2। ओके, बिकॉज 3 माइनस 5 माइनस 2 और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5n। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 255 अपॉन 5। ओके, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना मिलेगा 5 है 25, 5 बन जाए 5। सो यहाँ पर n मुझे मिल गया है 51। अब देखिए मुझे ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ यहाँ पर। ओके, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम, देखिए देयरफॉर अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यही वाला यूज कर रहा हूँ मैं, pth टर्म फ्रॉम द एंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n दैट इज 51 माइनस p दैट इज 20 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा ये 32। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 32th टर्म। देखिए 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज 32th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया।
pth term, that is 20th term from end, is n minus p plus 1 term from the beginning. तो 51 माइनस 20 प्लस 1, ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. अब आपको निकालना है 32 टर्म. सो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर 32 टर्म निकालना है यहाँ पे. सो ए 32 ये निकालना है आपको. तो कैसे निकालेंगे देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 3, 32 माइनस 1 क्योंकि एन की वैल्यू 32 इंटू डी कितना है 5. ओके फ्रेंड्स, ये आपको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे अपन 32 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आपका सेम आएगा. ओके, तो थ्री प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 31. ओके, 32 माइनस 1 है 31 इंटू 5. सॉल्व कर लीजिए. 3 प्लस 5 वन जा 5 और 5 3 जा 15. कितना आएगा फ्रेंड 155 और 3 कितना आएगा 158. ओके, सो दिस इज योर आंसर. पहली चीज यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. pth टर्म फ्रॉम द लास्ट, कौन सा मैंने जो आपको बताया था अभी ये वाला, pth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू n माइनस पी प्लस 1 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट. यहाँ पर आपको n निकालना पड़ेगा. n निकालने के बाद में फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा n माइनस पी प्लस 1, तो यहाँ पर 32 आया. तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी 32th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, और वो टर्म आपको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे अपन, फिर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा दी. तो 158 यहाँ आया. और इसके पहले मैंने आपको जब ऊपर बताया था, यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर ये वाला nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो तो डायरेक्टली यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं. तो यहाँ भी आपका आंसर 158 आया था और नीचे भी 150 आया. सो दिस इज सेम. और ये कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, so this is our questions. Now let us see next question. Let us see friend one more question. If the pth, qth and rth, if the pth, qth and rth term of an AP is x, y and z respectively, then prove that x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is 0. ओके फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये. इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ. ओके फ्रेंड्स, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म. सबसे पहले आपको सपोज करना है ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pth टर्म आपको दैट इज AP आपको क्या दे रखा है x दे रखा है. तो AP कैसे निकालते हैं अपन, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयर फोर AP कितना हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये आपको दे रखा है x. ओके, अब AQ कैसे निकालेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये आपको y दे रखा है गिवन है, और AR z दे रखा है. तो ए आर कैसे निकालते हैं, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जेड. ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ये जो x और y और z की वैल्यू अपन ने निकाली है ओके pth, qth और rth टर्म के फॉर्म में. सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द इक्वेशन बिलो, जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करना है, क्योंकि आपको प्रूव करना है ये 0 होना चाहिए. तो आपको दे रखा है x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू, ये आपको गिवन है. इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. ये जो अब वैल्यू आई है एक्स वाई जेड की, x की वैल्यू क्या है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और मल्टीप्लाई में इधर q माइनस आर, प्लस y की वैल्यू है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इधर है r माइनस p, प्लस z की वैल्यू क्या है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इधर है p माइनस क्यू.
अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखिए ए का जब अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू माइनस आर मिलेगा, इधर ए का मल्टीप्लाई आर माइनस पी में करेंगे तो आर माइनस पी मिलेगा, इधर ए का मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू में करेंगे तो पी माइनस क्यू मिलेगा। तो यहाँ अपन सभी में से ए कॉमन मैंने पहले ले लिया। यहाँ से आप ए का इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से तीनों में टर्म में ए आ रहा है तो ए कॉमन आ गया। तो यहाँ बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, क्यू माइनस आर प्लस इधर आर माइनस पी प्लस इधर पी माइनस क्यू। ओके, अब यहाँ देखिए आर से आर कैंसिल, ओके, यहाँ पर क्यू क्यू कैंसिल और पी पी, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा ज़ीरो, ए बाहर है ए कॉमन है और अंदर बचेगा, यहाँ सभी को सभी टर्म में से अपन कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, तो यहाँ ज़ीरो बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो डी के साथ वाले टर्म है वहाँ से आप डी कॉमन ले लीजिए। देखिए ये टर्म इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अपन ने ए वाला टर्म तो अलग कर लिया है, अब ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा पूरे में इस वाले में, तो डी कॉमन यहाँ से ले लीजिए। सिमिलरली डी कॉमन यहाँ से जाएगा जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी, सिमिलरली डी यहाँ से कॉमन आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी तो मैंने कॉमन ले लिया, अब मल्टीप्लाई कीजिए p इंटू क्यू, तो पी क्यू माइनस क्यू इंटू माइनस वन तो माइनस क्यू, फिर माइनस आर का p में तो माइनस पी आर, माइनस आर का 1 में तो प्लस आर। सिमिलरली इधर किए तो q इंटू आर क्यू आर माइनस क्यू पी, ओके, फिर आगे क्या होगा माइनस आर और प्लस पी। सिमिलरली यहाँ पर पी आर माइनस, सिमिलरली यहाँ पर क्या मिलेगा आपको पी आर, ओके, फिर माइनस क्यू आर, फिर माइनस पी और माइनस वन इंटू माइनस क्यू प्लस पी क्यू। अब यहाँ देखिए पी क्यू यहाँ पर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर से कैंसिल हो गया, क्यू यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, फिर पी आर यहाँ माइनस है और पी आर यहाँ प्लस है, फिर आर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उसके बाद में क्यू हो चुका है यहाँ पर। अब क्या बचेगा क्यू आर यहाँ पर प्लस है और क्यू आर माइनस है, ये पूरी टर्म और इसके बाद में ये पी और ये पी, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। ओके, तो यहाँ पर a इंटू ज़ीरो क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका था, इसके अंदर वाली टर्म सब कैंसिल आउट हो गई थी, इधर डी के साथ वाली टर्म भी सब जीरो हो गई, तो a इंटू ज़ीरो प्लस डी इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो, हैंस प्रूव। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक से अपन सॉल्व करते हैं, अंदर वाली टर्म सारी जीरो हो जाती है और बाहर जो कॉमन निकाला वो मल्टीप्लाई होगी जीरो में तो जीरो मिलेगा, हैंस प्रूव। तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। Okay friends, now let us see one more question. Which term of the AP 24, 21, 18, 15 so on is the first नेगेटिव, दैट इज माइनस में नेगेटिव टर्म? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि इस टाइप से अगर अपन आगे बढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस टाइप से सीक्वेंस आगे बढ़ेगा तो कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, कम होते हुए जा रहा है, तो कोई ना कोई सी टर्म नेगेटिव आएगी। तो फर्स्ट वाली जो टर्म नेगेटिव आएगी वो कौन से नंबर की टर्म आएगी, तो आपको n की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, let the nth term of the given AP be the first negative term. Okay, here A, दैट इज फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 24 है,
कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए 21 माइनस 24 दैट इज -3। ओके, अब देयरफॉर an इज लेस देन 0। ओके, हमने क्या माना है, लेट द nth टर्म मीन्स nth टर्म क्या होता है an को हमने लेस देन 0 माना है विद द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देयरफॉर ओके, दिस इम्प्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 24 प्लस n माइनस 1 और d है मेरे पास -3 इज लेस देन 0। सो 24 ओके, और ये जो है टर्म पूरी इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 का 3n और +3 इज लेस देन 0। 24 प्लस 3 कितना होगा 27। ओके, -3n इज लेस देन 0। अब क्या करना है फ्रेंड हमें, देखिए अब ये -3n है तो मैं इसको RHS में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये 27 इज लेस देन 3n, क्योंकि जब भी अपन इसको इनइक्वलिटी के RHS या LHS में ले जाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, कोई साइन चेंज हो जाता है, तो मैंने माइनस को इधर ले गया तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 27/3 इज लेस देन n। यहाँ पर क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड से मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जब मैं करूँगा तो 1 मिल जाएगा और यहाँ पर करूँगा तो 27/3। अब इसको 3 9 जा 27, तो ये आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आया कि देखिए 9 से जो बड़ी वाली टर्म होगी n की, मीन्स 9 n की जो वैल्यू होगी वो 9 से बड़ी जो भी होगी उस टर्म पे, उस नंबर की टर्म नेगेटिव होगी, फर्स्ट नेगेटिव। ओके, हैंस तो अब ये बताइए मुझे कि 9 से बड़ी टर्म कौन सी होती, इंटीजर वाली टर्म, इंटीजर। सिंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस n शुड बी integer, therefore n is equal to 10। okay, means just GREAT greater number than 9। तो जस्ट ग्रेटर 9 से बड़ा नेगेटिव सॉरी इंटीजर क्या होगा, वो होगा 10, तो n की वैल्यू 10, तो आपको लिखना पड़ेगा हैंस द 10th term of the given AP, hence the 10th term of the given AP be the first negative term। So this is your answer। okay, now let us see next question। okay friend, now let us see one more question। how many terms of AP -6 -11/2 -5 and so on are needed to give the sum this। okay friends, आपको क्या निकालना है, we have to find number of terms। so here a is -6, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है -6। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, -11/2 -6। ओके, कितना आएगा ये -11/2 +6 और -11, पहले एलसीएम ले लीजिए 2 -11 6 × 2 12 +12, सो इतना यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 1/2। ओके, अब आपको क्या निकालना है, आपको दे रखा है SN आपको दे रखा है -25 और आपको n फाइंड आउट करना है। ओके,
तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे इसको। वी नो दैट एस एन सम ऑफ एन टर्म कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है। देयर फोर -25 इज इक्वल टू n/2, a मेरे पास कितना है -6, तो 2 इंटू -6 प्लस n-1, d कितना है 1/2। ओके, अब -25 n/2 इधर कितना हो जाएगा -12 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा n/2 -1/2। अब -25 इधर है n/2, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर -12 और -1/2 और प्लस n/2 बाहर इधर है। ओके, अब यहाँ पर बचेगा -25 n/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके 2, तो यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो -24। ओके, क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे 2 से कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 12 इंटू 2 24, इधर है -1 प्लस n/2। अब -25 n/2 इधर क्या बचेगा -25/2 प्लस n/2। ओके फ्रेंड्स, इधर है -25। अब इधर आपको क्या करना है, इधर आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए -25 n/4 प्लस इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो n²/4। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर -25 इधर 4 -25 n प्लस n²। अब ये 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा ये -100, इधर बचेगा -25, दिस इज n, और इधर हो जाएगा प्लस n²। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई है। ओके, इसको भी हम उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा n² यहाँ पर -25n है और ये इधर आएगा तो +100 इज इक्वल टू 0। अब कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं अपन, इसके फैक्टर बनाना पड़ेंगे अपने को n²। ओके, अब यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 100, तो क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 100 और प्लस माइनस करें तो कितना मिलना चाहिए -25। तो इस टाइप से आपको टर्म बनाना पड़ेगा। तो 100 कब मिलेगा अपने को, 100 मिलना चाहिए आपको जब मल्टीप्लाई करें तो, और प्लस माइनस करें तो कितना मिलना चाहिए 25 मिलना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखिए 100 कैसे मिलेगा अपने को, तो 100 कब मिलेगा जब 20 इंटू 5 करेंगे, 20 इंटू 5 100, और जब इनको ऐड कर देंगे मीन्स -5 और -20, तो ये दो फैक्टर जाएंगे तो n² -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n -20 -5 कॉमन ले लीजिए तो n -20 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब आपके पास क्या आ गया देखिए, n -20 दोनों में से कॉमन आ जाएंगे, इधर बचेगा n -5 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया, या तो 20 आएगा या 5 आएगा। ओके, तो n का जो नंबर ऑफ टर्म है, ओके, जिससे आपको क्या मिलेगा, सम आपको -25 मिलेगा, वो इन दोनों वैल्यू पे आएगा। ओके, अब यहाँ पर दो वैल्यू क्या आएंगी फ्रेंड्स, क्योंकि n इक्वल टू 5 पे आपको -125 मिलेगा। इसके बाद जब आप आगे और टर्म्स लेंगे
तो जब उनका सम करेंगे तो वो 0 आउट होती जाएंगी। ओके, देयरफॉर आप 20 टर्म लीजिए या 5 टर्म लीजिए तो आंसर आपका सेम आएगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर यहाँ पर जिसमें 2 ही डिजिट हो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर divisible by 3। okay, how many 2 digit numbers are divisible by 3। तो आपको निकालना है कितने नंबर्स होंगे जो कि 2 डिजिट के हों और 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म करना है जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो हम जानते हैं 2 डिजिट नंबर्स ओके स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 10 से। ओके 10 10 और कहाँ तक, 99 तक जाते हैं। ओके, तो द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज गिवन एज, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है वो 12 होगा। ओके, जो कि 3 से डिवाइडेड होगा। उसके बाद में 15 18 एंड डैश डैश डैश, और लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 99 और ये भी 3 से डिविजिबल है। ओके, सो ये आपके पास मिल जाएगा। ओके, सिंस, अब यहाँ पर आपको देखना है ये किस टाइप की सीरीज़ है। सिंस 15 माइनस 12 ओके इज इक्वल टू 3, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ओके, देयरफॉर या यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए सिंस द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is same, therefore it is an AP। तो ये होगी AP क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब अगर AP है तो आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। ओके, सो यहाँ पर हियर A that is first term is 12, D that is common difference is 3। ओके, अब आपको निकालना है फ्रेंड्स n की वैल्यू। ओके, तो n की वैल्यू के लिए आपको लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए। तो लास्ट टर्म आपके पास 99 है। ओके, तीनों टर्म मिल गई। अब वी नो दैट an और l, या तो n लिख दीजिए या l लास्ट टर्म लिख सकते हैं, nth टर्म लिख सकते हैं। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, देयरफॉर अब an या लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 99 है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 12 है। n आपको निकालना है, n माइनस 1 और d है 3। ओके, अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 99 12 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3n माइनस 3। सो 99 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 9 प्लस 3n। ओके, अब 9 को यहाँ ले आइए आप LHS में, तो 99 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इधर 3n है, दिस इम्प्लाइज n कितना हो जाएगा, 90/3 दैट इज 30। सो आपका आंसर क्या है फ्रेंड, 30। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सो देयर आर 30 terms, there are 30 terms
or numbers, there are 30 numbers of 2 digits which are divisible by 3. तो आप क्या लिखेंगे? देयर आर 30 numbers of 2 digit which are divisible by 3. Okay, so this is your answer. Okay friend, now let us see one more question. The difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है आपको? एक पॉलीगॉन है, ओके, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो 120 दे रखा है, और जितने भी एंगल्स है, ऑल एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कॉमन डिफरेंस जो है 5 है। ओके, देयरफॉर ये क्या होगी? एक एपी होगी। ओके, और स्मॉलेस्ट एंगल को हमने फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 120। ओके, अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, एन निकालना है। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे अपन। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एस एन चाहिए। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ नोन दैट, हम जानते हैं, या ये यूनिवर्सल नोन है, दैट द सम ऑफ ऑल angles of a polygon with n sides is क्या होता है? इस 180 डिग्री के इंटू n माइनस 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ साइड्स, ओके, इन एनी पॉलीगॉन। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स, जितने भी एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगॉन में, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए एन की, तो आपको सम ऑफ एंगल मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो एन की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 होगा। तो 1 इंटू 180, तो सम ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर की बात करूँ, ओके, तो 4 माइनस 2 2 इंटू 180 360, तो स्क्वायर के एंगल का सम कितना होता है? 360। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मैंने क्या इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, और यहाँ पर एन इज़ द साइड, यहाँ पर एन क्या है? साइड है, ओके, पॉलीगॉन की। तो अब देखिए इससे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे ये मेरा क्या मिल गया? एस एन मिल गया। ओके, अब एस एन आ गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे देखिए, देयरफॉर एस एन, ये क्या है मेरा? एस एन इज इक्वल टू 180 एन माइनस 2। ओके, ए, यहाँ पर ए इज द फर्स्ट टर्म इज 120 डिग्री, एंड कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज डी मेरे पास है 5 डिग्री। ओके, सो दिस ऑल टर्म्स मेरे पास आ गई है। अब हमें क्या निकालना है? सो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है? एन बाय 2। ओके, यहाँ पर लिख दीजिए। चलो, यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है वेयर एन इज साइड। ओके, सो आप एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब एस एन कितना है? 180 इंटू एन माइनस 2, यहाँ पर है एन बाय 2। ए मेरे पास कितना है? 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 240 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है? 5 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा होल से डिवाइडेड है 2, तो 2 इधर आ जाएगा।
तो 360 हो गया यहाँ पर n-2। ओके, इधर सॉल्व कर लीजिए अंदर 240 प्लस 5n-5। ओके, सो 360 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए n -2 कितना हो जाएगा 720। इधर कितना हो जाएगा देखिए 240 और -5 तो कितना हो जाएगा 235। तो 235n और प्लस 5n²। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ओके, तो हम सारी टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये 5n²। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में n वाली टर्म जो है एक साइड ले लेते हैं अपन। तो मैं इस टर्म को इधर लेकर के आता हूँ। ओके, तो ये टर्म इधर माइनस में होगी, तो ये टर्म बड़ी है, तो माइनस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा मुझे 10 - 5 5 5 - 3 is 2 एंड 3 - 1 is 1। ओके, फिर ये टर्म इधर ले आऊँगा मैं, ये n है एक्चुअल में, दिस इज n, और इधर आएगा तो +720 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो n² बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25n प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब कितना बचा है मेरे पास कोऑर्डिनेशन मेरी माइनस ये 1 है 125, ये सॉरी 5 कॉमन ले लिया अपन ने, 5 कॉमन ले लिया अपन ने। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको कैंसिल कर दिया, 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना बचेगा मेरे पास n² -25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे 5 कॉमन ले लिया है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कोऑर्डिनेट की सॉल्व करते हैं। आपको जो सम मिलना चाहिए वो -25 मिलना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दैट इज ए और सी का 144 मिलना चाहिए। तो इस टाइप की आपको टर्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं 144 कैसे मिलेगा, देखिए 16 और 9, सो 9 6 या 54, कैरी आया 5, 9 1 9 एंड 5 14। तो आपको यहाँ मिल जाएगा n² माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से मैं n कॉमन लेता हूँ तो n -9 बचेगा, यहाँ से -16 कॉमन लेता हूँ तो n -9 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है, तो n -9 दोनों में से कॉमन हो गया, इधर बचा n, इधर बचा 16 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, सो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एक बार इसको 0 करेंगे और इसको जब 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू 16। सो दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जो पॉलीगॉन होगा हमारा, ओके, उसमें जो साइड्स होगी वो क्या होगी, या तो 9 होगी या फिर 16 होगी। ओके, तभी उनमें जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है वो उनका जो आपको क्या दे रखा है डिफरेंसेस जो है 5 होगा और फर्स्ट एंगल 120 होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। द जनरल term of a sequence is given by an is equal to -4n plus 15 is the sequence
forms an AP? If so, find its 15th term and common difference. देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको nth टर्म ए एन जो है -4n + 15 दिया हुआ है, ये गिवन है, तो क्या जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होगा। अगर एपी में है तो उसकी 15th टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सॉल्यूशन, वी हैव given the we have given the nth, आपको क्या दिया है, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू -4n + 15। देयरफॉर A1 कितना हो जाएगा, -4 × 1 + 15, दैट इज -4 + 15 इज इक्वल टू कितना आएगा, 11। A2 कितना होगा, -4 × 2 + 15, दैट इज -8 + 15 हो जाएगा ये 7। A3 कितना होगा, -4 3 + 15, -12 + 15 इज इक्वल टू 3। ओके, एंड सो ऑन। हियर A2 - A1, A2 - A1 दैट इज 7 - 11 कितना है, -4 है। A3 - A2, 3 - 7 इज -4। ओके, अब अगर अपन यहाँ देखें तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है। सिंस द डिफरेंस between the consecutive terms is same, so the given sequence is an AP। ओके, ये तो अपना हो गया फ्रेंड आंसर कि ये AP ही है। ओके, अब आपको निकालना है वी हैव टू फाइंड A15, ये आपको निकालना है। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -4 है। ओके, देयरफॉर अब देखिए A1 कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया 11। ओके, D कितना है, -4 है। सो अब आपको निकालना है A15, 15th टर्म, तो कैसे निकालेंगे, A + 15 - 1 × D। ओके फ्रेंड्स, तो A की वैल्यू 11 + 15 - 1 कितना होगा, 14 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। ओके, कॉमन डिफरेंस कितना है, -4 है। तो 11 - 56, क्योंकि 14 इंटू -4 इज 56। सो आंसर क्या आएगा फ्रेंड, -45, ये आपका आंसर। ओके, हैंस द 15th term of the given sequence is -45। okay friends, so this is your answer. Now let us see one more question. Okay friend, now let us see one more question. How many terms of the AP 24, 21, 18 dash dash gives the total sum 78? Okay friends, so here we have given AP in which first term, that is A, is 24, D निकाल लीजिए, 21 - 24 that is -3, और SN आपको दे रखा है 78, मीन्स सम ऑफ n टर्म्स 78 दे रखा है, और n की वैल्यू आपको निकालना है
कि n की कितनी वैल्यूज़ के लिए ये सम 78 होगा। ओके, सो अब आपको यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज़ करना है फ्रेंड। हम जानते हैं, वी नो दैट sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, सो Sn हमारे पास कितना है 78 है, n बाई 2 फर्स्ट टर्म कितना है 24, तो 2 इंटू 24 कितना आएगा फ्रेंड 48 प्लस n माइनस 1 और d है मेरे पास -3। सो 78 इधर आपको सॉल्व करना है, n बाई 2 48 प्लस -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -3 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा +3 और -3 इंटू n -3n। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हियर वी हैव 78, हियर 20 n बाई 2, 48 प्लस 3 कितना जाएगा 51 और -3n। ओके, अब 2 का अपन इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा फ्रेंड 156। ओके, 2 ऐड 16, 2 और 2 7 14 और 16, इधर n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस वाली टर्म इसको इधर ले आइए, तो 3n स्क्वायर, इसको भी इधर ले आइए -51n, और ये एज इट इज़ यहाँ पर 156, यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो n स्क्वायर माइनस 17n। ओके, क्योंकि 17 इंटू 3 कितना था 51, और प्लस यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए 3, तो कितना जाएगा 3 5 15 एंड 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अब आपकी स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन फॉर्म हो गई यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको 17 को ब्रेक करना है फ्रेंड्स। ओके, 17 को आपको ब्रेक करना है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो बीच वाली टर्म है उसको आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, कि सम उसका इतना हो और मल्टीप्लाई कितना हो a इंटू सी, दैट इज़ यहाँ पर a कितना है 1 है और यहाँ पर c कितना है 52 है, तो इनका मल्टीप्लाई दैट इज़ 52 हो। तो देखिए ए सी कौन सी टर्म होगी, 15 इंटू 4 कितना होता है, ओके 13 इंटू 4 कितना होता है 52। ओके, और इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। अब साइन माइनस का है तो दोनों का साइन माइनस लेंगे, सो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर n माइनस, यहाँ बचेगा 4 माइनस, यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा n माइनस 4। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से ये पूरा और ये पूरा कॉमन आ गया तो n माइनस 4 बचेगा यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, और n2 में यहाँ बचा n, यहाँ बचा -13। सो n minus 4 is equal to 0. This implies n is equal to 4, and n minus 13 is equal to 0. This implies n is equal to 13. Hence, तो आपके पास n की 2 वैल्यू होगी, hence
n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। ओके, तो n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी फ्रेंड्स, ये दो वैल्यू आएगी एंड बोथ वैल्यूज आर करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, दो वैल्यू क्यों आती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी डिक्रीजिंग सीरीज होती है मीन्स जब टर्म्स नेगेटिव में जाती है तो जो अगर आप 13 लोगे n की वैल्यू तो कुछ टर्म नेगेटिव रहेगी कुछ पॉजिटिव, जब उनको सम करोगे ओके तो आपको वही मिलेगा जब n की वैल्यू आप 4 लोगे, क्योंकि वो आपस में क्रॉस होती जाती है। सो दिस इज रीजन फॉर टू वैल्यूज। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू of k for which k2 plus 4k plus 8 comma 2k2 plus 3k plus 6 and 3k2 plus 4k plus 4 are three consecutive terms of an AP। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको वैल्यू निकालना है के की फॉर विच k2 plus 4k plus 8, 2k2 plus 3k plus 6 and 3k2 plus 4k plus 4 are three consecutive terms of AP। ओके, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है AP की, तो k की किस वैल्यू के लिए ये AP की थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी। ओके, तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। वी नो दैट द difference between any two consecutive terms, we know that the difference between any two consecutive terms of an AP arithmetic progression is same। okay, so अब ये जो आपको टर्म दे रखी है ओके, देयरफॉर क्या होगा देखिए, दिस माइनस दिस दैट इज 2k2 प्लस 3k प्लस 6, ये है सेकेंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है k2 प्लस 4k प्लस 8। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इक्वेट करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स। ओके, this is equal to second third term। okay, difference between second third term, so 3k2 plus 4k plus 4 minus second term 2k2 plus 3k plus 6। अब देखिए इसको अपन को इक्वल करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिए, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2k2 माइनस k2 तो कितना बचेगा यहाँ पर k2। देखिए 2k2 माइनस k2 तो एक k2 बचेगा, फिर यहाँ पर है प्लस 3k और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4k तो कितना बचेगा माइनस k। ओके, 3k माइनस 4k, फिर प्लस 6 और माइनस 8 तो माइनस 2। इधर बचेगा LHS में, RHS में क्या बचेगा देखिए 3k2 माइनस k2 तो कितना बचेगा k2, 3k2 माइनस k2 तो एक k2 बचेगा, 4k माइनस 3k तो प्लस k बचेगा, प्लस 4 इधर माइनस 6 तो माइनस 2 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर k को अपन एक साइड ले लेते हैं क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये माइनस k को अपन LHS RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बाकी टर्म इधर ले आते हैं। ओके, तो देखिए k2 और ये k2 इधर आएगा तो माइनस k2। ओके, k2 हमने एक साइड कर लिया, सिमिलरली यहाँ माइनस 2 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और इधर है के है एक और माइनस के इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, k2 माइनस k2 0, और सॉरी ये माइनस 2 है, माइनस 2 जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ओके,
तो K2 माइनस K2 इज 0 और इधर -2 +2 ये भी 0, तो इधर बचेगा 2K। ओके, देयरफॉर थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं, देयरफॉर K इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो फॉर K इज इक्वल टू 0 द गिवन टर्म्स आर इन AP। ओके फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर क्या लिखना है। सो फॉर K इज इक्वल टू 0 द गिवन 3 terms form an AP. Okay friends, this is our answer. Now let us see one more question. Okay friend, now let us see one more question. Find the sum of all 3-digit numbers which are multiples of 7। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3-digit नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड, सबसे पहले फर्स्ट 3-digit नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा। देखिए इधर मैं आपको बता देता हूँ रफ में, फर्स्ट 3-digit नंबर क्या होता है, 100 होता है। ओके, अब 100 होता है, तो अगर अपन 100 को 7 से डिवाइड करें तो देखिए कितने टाइम जाएगा, 7 1 से 7, 3 नीचे 0 आया, देन 7 4 जा 28 2। ओके, यहाँ पर कितना बचा 2। अब आपको क्या करना है, 7 - 2 दैट इज 5 को हमें इसमें ऐड करना है। ओके, तो 100 + 5 दैट इज 105। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 3-digit नंबर, जो कि क्या होगा फ्रेंड, डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा 7 के। ओके, देखिए इसको करके देख लीजिए आप, क्या ये 7 का मल्टीपल है। तो देखिए 105 को अब अगेन अपन क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 1 जा 7, कितना बचा माइनस, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ मैं इसको, देखिए 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 105 को, जो मैंने अभी निकाला है ऐसे। तो 7 1 जा 7, ओके 1 से जाएगा तो बचा 3, फिर 5 आया, और 7 5 जा 35। सो दिस इज़ करेक्ट। तो पहला फर्स्ट 3-digit नंबर मुझे मिल गया है 105। ओके, तो इसे हम लिख लेते हैं। सो लिख लीजिए आप, ऑल 3-digit numbers, all 3-digit numbers which are multiples of 7 are, क्या होगा फ्रेंड, देखिए पहला मैंने निकाल लिया है 105। अब क्या करना है आपको, सिंपल इसमें 7 ऐड करना है, क्योंकि 7 का मल्टीपल चाहिए। तो फर्स्ट आ गया 7, इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना मिलेगा 1012। ओके, अगेन अब इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो 119 एंड डैश सो ऑन। अब देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर लास्ट नंबर चाहिए, लास्ट नंबर हमें रिक्वायर है, तभी अपन सम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरा रफ पोर्शन है। ओके, दिस इज़ माय रफ वर्क में अपन यहाँ फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए लास्ट
3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। ओके, ये होता है। अब मुझे निकालना है मल्टीपल ऑफ 7 का। तो अब इसको 999 को हम डिवाइड करते हैं 7 से। ओके, तो देखिए कितने टाइम जाएगा, डिवाइड कर लीजिए इसे। 7 1 जा 7। ओके, और आप इसे एक काम कीजिए, अपन इसको 8 से डिवाइड करते हैं। ओके, 8 से डिवाइड करते हैं। ओके, सो चलो 1 से करते हैं पहले। 7 1 जा 7, माइनस करेंगे अपन तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब नीचे आया 9। अब फिर से अपन इसको डिवाइड करते हैं। 7 4 जा, ओके, 4 से 7 4 जा 28, कितना बचा, 1 बचा। फिर आया नीचे 9। ओके, अब फिर 7 3 जा 21 ज़्यादा होता है, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 जो अपन ने किया इसको, तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 5। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कितना आया, 5 आया, जो कि 5 इससे ज़्यादा है। तो अपन को क्या करना है, सिंपल 999 माइनस 5 कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 994। ओके, सो दिस इज द लास्ट नंबर। ओके, ये लास्ट नंबर आ गया 3 डिजिट का, जो कि 7 से डिविजिबल है। ओके, तो हम इसे लिख लेते हैं अब। तो लास्ट नंबर इज 994। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है अपने को। ओके फ्रेंड्स, अब आपको निकालना है सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। तो जो ये सीरीज बन रही है, ओके, इसका आपको सम निकालना है। ओके, हियर दिस इज एन एपी, ये एपी है। ओके, इन विच फर्स्ट टर्म जो है ए 105 है, कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ देख लीजिए, 112 माइनस 105 कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। या इसका भी करके देख लीजिए, 119 माइनस 112 7, तो ये आपको मिल गया। ओके, और लास्ट टर्म जो है 994 है, 994 है। अब आपको निकालना है n। अगर आपने n निकाल लिया, ओके, देन वी कैन इजीली फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। ओके, सो हाउ टू फाइंड n? वी नो दैट लास्ट टर्म और nth टर्म, इसको अपन nth टर्म भी बोलते हैं, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, देयरफॉर लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, 994। ओके, a मेरे पास कितना है, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7। देयरफॉर n माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना बचेगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 889। ओके, और अपॉन में 7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7। ओके, यहाँ बचा 1, 7 2 जा 14। ओके, बचा 4, और 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इज 127। देयरफॉर n कितना हो जाएगा, 127 प्लस 1 दैट इज 128। अब आपके पास n आ गया, नंबर ऑफ टर्म आ गई। तो अब आपको निकालना है फ्रेंड सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। वी नो दैट, ओके, Sn कितना होता है, Sn होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n मेरे पास कितना है, 128 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है, 105, और लास्ट टर्म कितना है, 994। ओके, देयरफॉर अब Sn कितना हो जाएगा, इधर कितना बचेगा फ्रेंड्स, 128 है, इसको हाफ कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 64। ओके, इधर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 5 9। ओके, 9 + 0 9, और 9 + 1 10। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास क्या जाएगा,
ये हो जाएगा आपके पास 9, 9 और 10। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, आंसर आपका आ गया 70470। ओके सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 70336। ओके, दिस इज योर आंसर। आया फ्रेंड्स समझ में, ये कैसे आया? अपन ने n की वैल्यू निकाल ली, फिर सम ऑफ n टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो n कितना है 128, 120.2 कितना होता है 64 होता है। इधर फर्स्ट टर्म 105 है और इधर लास्ट टर्म जो है 994 है। सम करने के बाद कितना है आपके पास 4 + 5 9, 9 + 0 9, 9 + 1 10। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 70,336। तो ये क्या है फ्रेंड, दिस इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ 3 डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। ओके, now let us see next question. Okay friend, let us see one more question. Find the sum of all 3 digit numbers. Find the sum of all 3 digit numbers which are divisible by 11। ओके फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट निकालना है जो कि 11 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है फ्रेंड, वो होता है 100। अब 100 क्या 11 से डिविजिबल है, तो अपन देखते हैं 100 डिवाइड बाय 11। ओके, 100 डिवाइड बाय 11, तो 9 से करते हैं तो 99। ओके, यहाँ कितना बचा फ्रेंड, 9 से अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 99 आया। तो 100 माइनस 99 कितना बचा 1। ओके, 1 बचा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है 100, इसमें अपन कितना ऐड करें कि ये डिवाइड हो 11 से। ओके, तो अपन क्या करेंगे देखिए, सो 11 माइनस 1 जो रिमाइंडर आया उसको अपन माइनस करते हैं। 11 माइनस 1 कितना होता है 10। सो 100 में आप 10 प्लस कर दीजिए तो कितना जाएगा 110। तो दिस इज द फर्स्ट नंबर। ओके, सो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ गया, 3 डिजिट का जो 11 से डिविजिबल हो वो हो जाएगा 110। अब इसमें अपन 11 ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें नेक्स्ट नंबर, इसमें 11 ऐड कर दीजिए तो 121। फिर इसमें 11 ऐड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 132 एंड सो ऑन। अब आपको चाहिए लास्ट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए दिस इज वर रफ वर्क। सो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है फ्रेंड, वो होता है 999। ओके, 999। अब 999 को अपन डिवाइड करते हैं 11 से। तो करते हैं, पहले 9 से करते हैं तो 99। ओके, माइनस कर दीजिए 0। अब आया रिमाइंड, नीचे आया 9। ओके, अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आया 9। अब आपको क्या करना है, 9 रिमाइंडर आया है तो सिंपली 999 में माइनस 9 कर दीजिए तो ये जाएगा 099। सो दिस इज द लास्ट नंबर। ओके, 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11। तो लिख दीजिए लास्ट नंबर 990। अब देखिए फर्स्ट नंबर आ गया है, लास्ट नंबर आ गया है, तो इजीली हम n निकाल सकते हैं और जब n आ जाएगा तो आपको सम निकाल सकते हो। सो अब देखिए, सो दिस इज एन
AP, okay, with first term A इज इक्वल टू 110, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए 11 ही आएगा आपका, और लास्ट टर्म L जो है 990. ओके, देयरफॉर यूजिंग द formula of last term L is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, we get लास्ट टर्म क्या है 990, फर्स्ट टर्म 110 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 11 है. ओके, अब इसको इधर ले आइए तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, इधर जाएगा. ओके, तो माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 88 और 11 आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा. ओके, n माइनस 1 कितना आ गया 80, देयरफॉर n कितना हो जाएगा 81. ओके, अब n हमारा 81 आ गया है. देयरफॉर सम ऑफ ऑल 3 digit numbers which are divisible by 11 is, क्या होगा, Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए. Sn क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जब हमारे पास दोनों टर्म हो, अदरवाइज हम वो पूरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं. ओके, तो n हमारे पास आ गया 81/2. ओके, उसके बाद में फर्स्ट टर्म 110 और लास्ट टर्म 990. ओके फ्रेंड्स, तो 81/2 इसको सम कर लीजिए तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, देखिए 0 9 और 1 10, 0 फिर बचा 1 9 10 और एक 11. ओके फ्रेंड्स, ये आ गया. अब इसको 2 से डिविजिबल कर दीजिए और 81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा हमारे पास, आपके पास आंसर आ जाएगा. यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए 44,550. दिस इज़ योर आंसर. तो ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11. ओके, तो यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये याद रखना आपको. लास्ट नंबर कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट नंबर कैसे निकाला जाता है, कोई भी डिजिट का हो, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी फर्स्ट या लास्ट नंबर है उसको उस नंबर से जिसका डिविजिबल या मल्टीपल निकालना है उससे डिवाइड कर दीजिए, और जो भी रिमाइंडर आता है. ओके, तो अगर आपको क्या निकालना है, माइनस करके निकालोगे आप, तो आपको निकल जाएगा इसके बाद वाला नंबर. ओके, जैसे अपन ने इससे डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या है, एक 1 आया, तो 11 में से 1 माइनस किया 10 और 10 इसमें ऐड कर दिया, तो ये फर्स्ट नंबर हमारा आ गया. सिमिलरली अगर आपको इससे पहले वाला नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट जो रिमाइंडर आया उसको इस नंबर में से माइनस कर दीजिए, तो आपका वो लास्ट नंबर आ जाएगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर. ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट जीपी स्टार्ट करेंगे. ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है ये एपी का, उसके बाद अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एपी. If the sum of first n, 2n and 3n terms of an AP be S1, S2, S3 respectively, then prove that S3 is equal to 3 times S2 minus S1. फ्रेंड्स, आपको क्या बोला है,
कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट थ्री एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, कोई ए पी है उस, ओके, वो आपको S1 S2 S3 के फॉर्म में दे रखा है तो रिस्पेक्टिवली। सो आपको प्रूव करना है कि S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1 होगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम सपोज कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस, ओके, ऑफ एन ए पी, ओके, देन S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ओके। S1 को हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें गिवन है, तो वो कैसे निकालते हैं, वो होगा फ्रेंड्स n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, मतलब यहाँ पर n की जगह 2n है। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, तो वो कितना जाएगा 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ओके, S3 क्या होगा फ्रेंड्स, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, S3 हो जाएगा 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये हो गया। अब टेकिंग हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर टेकिंग RHS 3S2 माइनस S1, ये हमें दे रखा है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं अपन, 3S2 क्या है हमारे पास, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं S2 को, अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n बचेगा, फिर 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ओके, माइनस, अब S1 की वैल्यू पुट कीजिए, S1 क्या है मेरे पास यहाँ पर, n बाय 2a, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए कैसे करेंगे अपन इसको सॉल्व। अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2an ये हो गया, प्लस डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2n इंटू डी माइनस ये n भी इधर जाएगा तो ये जाएगा n स्क्वायर, ये n इधर जाएगा तो 2n स्क्वायर, और डी इधर से आएगा माइनस, फिर n इसमें जाएगा तो माइनस n इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, ये 2 कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा n इंटू ए। ओके फ्रेंड्स, माइनस ये जब इस अंदर n मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा n ए माइनस n ए, फिर n इधर जाएगा और डी इधर से आएगा तो माइनस ये n इधर गया तो n स्क्वायर। ओके, अपॉन क्या है यहाँ पर 2a n स्क्वायर इंटू डी, और माइनस n इंटू डी अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा n ए। ओके, इधर d इधर से आएगा
इधर से n आएगा तो n स्क्वायर और d अपॉन 2, फिर इधर d इधर है और n/2 इधर से आया तो माइनस n d अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसको अंदर सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2na यहाँ पर है और na यहाँ पर है तो कितना बचेगा, na बचेगा, ये माइनस में प्लस में। ओके, उसके बाद में यहाँ पर है 2n स्क्वायर डी और यहाँ पर है n स्क्वायर डी अपॉन 2। ओके, तो इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, देखिए प्लस, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कितना है 1 है, एलसीएम आया 2। ओके, एलसीएम आया 2, तो 2 × 2 4, तो यहाँ जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 1, क्योंकि 4n स्क्वायर डी और यहाँ पर माइनस n स्क्वायर डी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3n स्क्वायर डी बचेगा, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में बचा ये दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, एलसीएम आया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2na और यहाँ पर n है तो nd, ये हो गया आपका। ओके, अब देखिए इतना हो गया, अब इसको आगे सॉल्व करना है अपने को। ओके, अब इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पूरे में एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2na प्लस 3n स्क्वायर डी माइनस 3n डी। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस 2 को पूरे को बाहर ले लीजिए अपन और यहाँ से n कॉमन ले लीजिए। ओके, n कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2a प्लस यहाँ से n गया तो कितना बचा 3d माइनस यहाँ से भी n गया तो कितना बचा, यहाँ पर यहाँ से एक n चला गया तो यहाँ पर बचा 3n इंटू डी। ओके, और यहाँ से n चला गया तो यहाँ बचा 3d। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 3n/2 यहाँ पर बचा है। ओके, उसके बाद में 2a बचा है। अब यहाँ से आपको ये क्या है 3nd और ये 3d है, तो यहाँ से आपको d कॉमन लेना है, यहाँ से d कॉमन लेना है तो यहाँ बचेगा 3n, यहाँ बचेगा -1। अब देखिए मेरा जो S3 था वो क्या है 3n/2 है, यस 2 है, यस d कॉमन ले लिया है और 3n/1, तो वेरी गुड, ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपका S3। ओके, ये आ गया आपका S3, हैंस आपका आंसर प्रूव हो गया है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ कि कैसे अपन ने किया है। सबसे पहले S1 हमने मान लिया है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये निकाल लिया, सम ऑफ 2n टर्म्स, तो ये निकाल लिया S2, और सम ऑफ 3n टर्म्स ये निकाल लिया। इनको निकालने के बाद में हमने टैकिंग RHS वाला लिया है। RHS को लेने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है कि आपको S3 लेकर के आना है, इस टाइप से। तो ये S3 आ गया और हैंस प्रूव हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हमने AP आज कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए। ओके, नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।